ہم سب سنیں گے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے کہ بیٹا، عورتوں کو ہم نے ترغیب نہیں دی، بلکہ عورتیں بغیر ترغیب کے جو ہے روزہ رکھ رہی ہیں، اعتکاف کر رہی ہیں، ہاں، جلسے کی کامیابی کے لیے۔ جلسے کے متعلق میرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت بازار کی طرف نہ ہو کر 25، 26، 27 کو جو ہے جلسہ گاہ کی طرف رخ کریں۔ وہ پہ پیدل نہ چلے جائے، سواری سے نہ چلے جائے، تو بیٹا وہ اپنی موٹر سائیکل پہ لے جا، یا بہانے سو ہمارا لوفر بیٹا جو ہمارے ساتھ چل جائے گا۔ یہ نہیں کہ تعزیہ اور کوئی بیڑا ہے، یہ دینی اور اسلامی اور دھارمک جلسہ ہے، یہ اصلاح معاشرہ اور سماج سدھار کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کان میں ایسی آواز پڑے جو اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ لے کر حاضر ہو۔ جلسہ گاہ کے اندر ابھی ہم دیکھ کر آئے، تیاریاں ہم نے دیکھی، ہر طرح سے تیاریاں کہیں نہ کہیں نوروز پر پہنچ رہی ہیں۔ ایسے میں ہمارے ساتھ میں حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب ہیں، ان سے ہم راستوں کے متعلق اور اس تیاریوں کے متعلق، کیونکہ اتنی جلدی تاریخ ملی اور بہت کم وقت ملا، اور بہت کم وقت کے اندر اندر اتنی بڑی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں، کس طرح سے مینجمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لے کر ہم حضرت مولانا سے بات چیت کریں گے۔ جی حضرت، سب سے پہلے تو آپ کا نیوز 93 چینل میں استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ حضرات امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے امت مسلمہ تک دین اسلام کی بات پہنچانے کے لیے ہماتاً مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ حضرت، 3 دن کا جو اجتماع ترواڑا اور نئی گاؤں کے بیچ میں ہو رہا ہے، بہت کم وقت ملا اور بہت بڑی تیاریاں، کیسے مینجمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کام اور اتنے کم وقت میں ہونا بہت مشکل ہے، لیکن یہ انسانی محنت کا نتیجہ ہے، اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن ساتھ کے ساتھ اکابرین کی سحرگاہی، دعاؤں کی برکت ہے۔ ہمارے ذمہ دار حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح جب مجھ سے پہلے آ کر میدان عمل میں اتر جاتے ہیں، اور رات کو 11:30، 12:30، 1 بجے تک جو ہے میدان عمل میں رہتے ہیں، سونے کا وقت بھی نہیں ہے، اور رات دن جو ہے ہمارے رضاکار کہیں دھوج سے، کہیں روپڑاکا سے، کہیں اٹاوڑ سے، کہیں فیروز پور جھرکا سے، کہیں لچھمن گڑھ سے، سب لوگ جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام سمجھ کر نہیں، بلکہ دین کا کام، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محنت کا کام سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں۔ اپنے کام میں تو آج یہ سوچ لیتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، لیکن آگے سامنے وہ وقت بھی ہے کہ قد بند کو نگاروں بج جائے، تو اس لیے لوگ محنت میں ہماتن گوش لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ جو تاریخ تھی، یہ پہلے اڈور گاؤں کو ملی تھی، لیکن اب اچانک ترواڑا اور نئی گاؤں کے لیے تاریخ مل گئی، پونان حلقہ کے لیے تاریخ ملی، کیا کارن ہوا اس کا؟ کارن وغیرہ سے میں واقف نہیں ہوں، اکابرین کی توجہ اور ان کی محبت کا ثمرہ ہے، اور علاقے کی طلب ہے، الحمدللہ۔ بس اسی کی وجہ سے یہ تاریخ یہاں مل گئی، اس پر کیا ہے۔ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ تیاریاں، میں اس وقت وہیں تھا جب آپ وہاں حکیم الدین صاحب کا انٹرویو لے رہے تھے، آپ خود میدان میں دیکھ کر آئے ہیں۔ اتنے کم وقت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل تک پورا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، وہ ٹینٹ کا وہ جو ہے پنڈال مکمل ہو جائے گا، سٹیج مکمل ہو چکا ہے، اور جو وضو خانے تقریباً تکمیل تک پہنچنے والے ہیں، اور وہ قیام گاہ بھی الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ بھی مکمل ہونے کے نزدیک ہے۔ تو سارے کام اب جو ہے مجھے یہ ہے کہ 22 تاریخ کی صبح تک یا 22 تاریخ کی شام تک سارے کام جو ہے مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اس سے 3 دن کے تبلیغی اجتماع میں حضرت مولانا سعد صاحب تشریف لائیں گے؟ حضرت مولانا سعد صاحب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے۔ حضرت نے وعدہ کیا ہے، اور الحمدللہ کابرین کا یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ ان العہد کان مسئولا، علماء انشاءاللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، الکریم اذا وعدہ وفا۔ اللہ کرے کہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آ جائے، شرعی رکاوٹیں بھی پیش آ جاتی ہیں تو وعدہ خلافی نہیں ہوتی، لیکن امید ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت خود بھی اور صاحبزادگان بھی اور دوسرے اکابرین بھی، اور اس وقت 20 افراد کی جماعت
मुकद्दमतुल जैश के एतबार से मरकज़ निज़ामुद्दीन से इलाके में आ चुकी है और कल से अपने काम और मेहनत में तश्कील में वसूली में लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से, इंतज़ाम के एतबार से, खुरूज के एतबार से, तश्कील के एतबार से, चिल्ले और 4 महीने के एतबार से, और मैं देख रहा हूँ कि अचानक जो है मसाजिदों में भी नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम तेज़ी पर चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला नज़र बद से इस काम की और काम करने वालों की हिफाजत फरमाए और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की मरहमत फरमाए। अभी हमने 2-3 दिन पहले ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट ली थी मैदान में जाकर, जहाँ जलसा हो रहा है। तो जलसे का रूट क्या है? क्योंकि कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, जलसे का रूट क्या है और कहाँ कहाँ से यूपी से आएंगे या राजस्थान से आएंगे या हरियाणा से जो लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे? हमने जो है मुफ्ती सईद साहब नई और वहाँ अब्दुल्ला साहब सिंगार और बंदा नाचीज़ मास्टर हाजी अब्दुल हमीद साहब, मास्टर दीन मोहम्मद साहब और दूसरे काम करने वाले अहबाब सब ने सर जोड़कर मशवरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने रास्तों की निशानदेही को जो है हमारे ज़िम्मेदारान के ऊपर खोला, तो डीग और ज़िला भरतपुर उसके लिए तो वो जो है इधर से सीकरी वगैरह से जो तशरीफ़ लाएंगे, जो रेडा होते हुए वो तो पाही से नौगांवा वाले रूट पर हतनगांव और यहाँ से, और इसी तरीके से कामा और डीग और भरतपुर से वो आएंगे, वो भी इसी रास्ते से आएंगे। और अगर कोई साथी आना चाहे तो नहदा और बॉर्डर से भी आ सकता है। फिर यहाँ से ड्रेन के पुल को, उजीना ड्रेन के पुल को जैसे ही पार करेंगे, उससे 500 मीटर आगे चल के जो है एक रास्ता दिया है और वो रास्ता सीधा जो है जलसागाह के लिए गया है। वहीं पार्किंग नंबर 1 बनाई गई है और पार्किंग नंबर 1 के करीब ही मुत्तसिल खिलाने का इंतज़ाम किया गया है। बस ये है कि वहाँ से उतरो, पहले खाना खाओ, फिर वहीं से एक यानी कि 200 मीटर की दूरी पर जलसागाह है, पहले उतरो, फिर खाना खाओ, फिर जो है इज्तिमा गाह में जाओ। ये इसी तरीके से जो इधर से भी कोई लोग आ सकते हैं, कामा की तरफ से जो परिक्रमा रोड जो बनाया गया है नई को, सीधा भी वो वहाँ से गुंडगांव से उधर कर मुड़कर वहाँ से भी सीधे आ सकते हैं। और जो कोसी वगैरह और ये फरीदाबाद, ये होडल की तरफ से आकर इंदाना कोठी और इंदाना कोठी से मढ़िया की और झारोकड़ी और नई के बीच से खेतों में कर एक सीधा रास्ता दिया है जो पार्किंग नंबर 2 पर पहुंचेगा। वहाँ भी हमने ऐसा इंतजाम किया है, पार्किंग बनाई है और वहाँ उतरेंगे, वहीं उसी के पास खाने का इंतजाम किया गया है और वहाँ उतरें, फिर खाना खाएं और फिर जो है पिंडाल में आए। और इसी तरीके से जो लोग इधर से आएंगे फिरोजपुर की तरफ से, वो बोरी कोठी से महू और तिगांव होते हुए लुहिंगा से सीधे यहाँ पहुँचना है। तो अगर कोई 1-2 रास्ते हैं उसके, एक रास्ता है पुनाना में मेव मोहल्ले के पास से बंद के ऊपर का रास्ता है, तो आप उस लुहिंगा मोड़ से बाईं तरफ मुड़कर 200 मीटर चलने के बाद दाईं तरफ एक रास्ता आ रहा है। वहाँ हमारे वेंटिलेटर जो है वॉलंटियर और जो है वो क्या कहते हैं उसको रजाकार लोग होंगे और वहाँ हमारा बैनर भी लगा हुआ होगा। वहाँ से आप शहर को बचाकर उस पुल से भी उस बंद से भी निकल सकते हैं। सीधा आप शमशान घाट रोड से बिजली बोर्ड रोड पकड़ तिरवाड़ा पहुँच जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको वहाँ भीड़ नजर आए तो लुहिंगा मोड़ से आपको दाएं हाथ मुड़ना है। दाएं हाथ पे मुड़ के 500 मीटर चलने के बाद 2 रास्ते हैं, एक इस्लामुद्दीन की बर्फ फैक्ट्री का रास्ता है, उससे भी जा सकते हैं। फिर आगे चल के एक ठेक के लिए भी रास्ता है, उस पे भी आप जा सकते हैं। और फिर वहां से आप बिजली बोर्ड वाले रास्ते से तिरवाड़ा आ सकते हैं। तिरवाड़ा से 500 मीटर पहले एक छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद आमना के नाम से, वहां से उरे बड़े बड़े बिजली के जो पोल हैं उनके करीब से एक रास्ता निकाला गया है जो तिरवाड़े को बचाकर सिंगार की तरफ से सीधा आपको पार्किंग नंबर 3 पर पहुंचाएगा। वहां उतरकर आप वहां भी खाने का इंतजाम किया गया है, उतरे, खाना खाएं, फिर पिंडाल जाएं। इंशाल्लाह पानी का इंतजाम भी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगर पालिका के चेयरमैन बलराज
सिंगला साहब, उन्होंने भी जो है पानी के मोबाइल टैंकर चलाने का वादा किया है, और जो क्या कहते हैं 70 TDS का पानी लेकर आएंगे वो गोदला से, बिल्कुल मीठा पानी, और वो चलते रहेंगे। और हमारे कुछ रजाकार साथी जिन्होंने कहा है कि जी हम 1 लाख बोतल तकसीम करेंगे, किसी ने कहा है कि हम 50,000 बोतल तकसीम करेंगे, और किसी ने पेश की जैसे चौधरी रईसा ने 10,000 बोतल पहले भेज दिया। तो इस तरीके से काम बड़ी तेजी से चल रहा है। और जो नूह से और ताउड़ू से और गुड़गावा से जो लोग आएंगे वो नूह से चौराहे से सीधा होडल रोड पर आएंगे, कोट पहुंचकर फिर वो दाएं मुड़ेंगे, और दाएं मुड़कर पुनाना वाले रोड पर 500 मीटर आगे चलने के बाद उनको पुनाना नहीं आना बल्कि पावसर आली वाले रोड पर आना है, और उस आली वाले रोड पर आकर जो है आपको खाई का सिंगार, और सिंगार से फिर आप पार्किंग नंबर 3 पर वहां पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। ये रास्ते की तरतीब है। अल्लाह करे कि निज़ाम के मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए तो इंशाअल्लाह आसानी होगी, दुश्वारियों से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। आखिरी सवाल ये है कि जो 3 दिन का तबलीगी इज्तिमा यहाँ हो रहा है, अचानक हुआ, लोगों के अंदर खुशी है, लेकिन जितना आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं यहाँ, इतना शायद मैं नहीं हो पा रहा हूँ। तो कैसे देख रहे हैं आप लोगों की खुशी को, किस तरह से नई तिरवाड़ा गांव के बीच में और आसपास के इलाके के लोगों में किस तरह से खुशी? आप ये देखिएगा कि उसको तो सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप वहाँ जीरो ग्राउंड पर गए, अब भी वहाँ 10,000 आदमी मौजूद है, और जो है कोई आदमी जो है वुजू खाने की तैयारी में, कोई कहीं, और चाहे कोई 10 तमाशबीन है, और आप देख रहे हैं गांव में कैसी हलचल है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जोश है। और यहाँ तक के मैंने पहले भी वो क्या कहते हैं साहिब पत्रकार को मैंने बताया था, साहिब कासमी को, कि औरतों को हमने तरगीब नहीं दी, बल्कि औरतें बगैर तरगीब के जो है रोजा रख रही हैं, एतकाफ कर रही हैं। हाँ, जलसे की कामयाबी के लिए मर्द हजरात दूर दूर से, अभी मास्टर शमशाद उनकी टीम 2 गाड़ियों में फिरोजपुर से आई, और उन्होंने कहा कि जी हम इस काम से जो है कर चुके हैं पेशगी, और अगर कोई आपको किसी एतबार से ताउन हो, हमको जो टेक्निकल एतबार से या माली एतबार से या जिस्मानी एतबार से, तो हम हर एतबार से आपका ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा हमने तो सबक ही सारा आपसे लिया है, और उसी एतबार से हम काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ा खैर मरहमत फरमाए। लोग अपने आपे को बगैर किसी उसके अपने आपे को पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे? जलसे के मुताल्लिक मेरा पैगाम यह है कि लोगों की आमदोरफ्त बाजार की तरफ न होकर 25, 26, 27 को जो है जलसागाह की तरफ रुख करें, और इत्मीनान के साथ, ये नहीं कि ताजिया और कोई बेड़ा है, ये दीनी और इस्लामी और धार्मिक जलसा है। ये इस्लाह मुआशरा और समाज सुधार के लिए है। आज हमारे नौजवान, हमारी माँ बहनें किस तरीके से इधर उधर का मामला है वो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हम सुनेंगे, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे कि बेटा वो पे पैदल ना चले जाए, सवारी से ना चले जाए, तो बेटा वो अपनी मोटरसाइकिल पे ले जा, या बहाने सू हमारा लोफर बेटा भी हमारे साथ चल जाएगा। हो सकता है कि कोई कान में ऐसी आवाज पड़े जो उसकी इस्लाह का जरिया बन जाए। इसलिए अपने बच्चों को, नौजवानों को इस जलसे में ज्यादा से ज्यादा लेकर हाजिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के लिए इस जलसे को इस्लाह का जरिया बनाए।